Hello guys, I am Himanshu Sharma. Welcome you all to my channel Pariksha Pathshala. So today we are going to start a very new session which is banking awareness show with Himanshu sir. Okay, so today we are going to start a new session. As you all know that the channel is recently created and there are only two sessions are running. First is daily current affairs show with Himanshu sir and second session is daily fact based videos related to different fact information got from the news. So today we are going to start the new session which is important for the RBI Grade B exam, NABARD Grade B exam, IBPS PO, RRB PO, IBPS clerk, RRB PO and all the bank examination which is related to banking and insurance. So today we are going to discuss. Before starting the discussion, I want to let you know that the Pariksha Pathshala is now on different social media platforms like YouTube channel. We have the new YouTube channel जहां आप मेरा वीडियो देख रहे हैं. If you have not subscribed yet, kindly subscribe the channel and also press the bell icon for the new updates. We are on Facebook also, so you can follow us on Facebook. Here is the Telegram channel by the name of Pariksha Pathshala by Himanshu sir. Here we provide you the different PDF of our lectures. Okay, you can also follow us on Pariksha Pathshala's Instagram account. In the description box, you will get the link of all these social media platforms. So today we will discuss in deep on the topic negotiable instrument. On which topic? Negotiable instrument. Negotiable instrument came under the topic money market. In which topic? Money market. We will discuss the topic negotiable instrument. Now, if यहाँ पर टर्म आ गया है मार्केट, सो मार्केट मीन्स व्हाट? मार्केट मीन्स ट्रेड ऑब्लिक कॉमर्स. यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स की हम बात करेंगे. ट्रेड एंड कॉमर्स है तो यहाँ पर पेमेंट्स होगा. क्या होगा? पेमेंट्स होगा. और जहां पर पेमेंट्स होता है वहां पर कैश एंड क्रेडिट दोनों चीजें होती हैं. तो यहाँ पर इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो ट्रेड के लिए मर्केंटाइल पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया है. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, तो व्हाट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 passed by the Britishers and came into force or came effect from March 1882. What is the source? What is the source of this act? It is English common law is the source. सोर्स मींस ब्रिटिशर्स का जो लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से इन्होंने इसको बनाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स. इट मींस mercantile purpose. For mercantile purpose. Okay, mercantile purpose के लिए it is formed. Then what is the meaning of negotiable instrument? Economics is the best subject where you can get the answer. You can get the meaning of the term by splitting the term. For example, here the term is negotiable instrument. We have split it into two parts, negotiable and instrument. So what is the meaning of negotiable? What is the meaning of instrument? And then we will connect them or got the meaning of negotiable instrument. Negotiable, here negotiable doesn't mean negotiation. यहाँ पर negotiable से हमारा negotiation से मतलब नहीं है. It is means negotiable meaning, here the negotiable meaning transferable
Okay, guys, transferable. An instrument means a written document, transferable and written document. So how many times it can be transferred? It can transfer many times. Many a times we can transfer this written document. But you have to note it that here the most important thing is that maturity. It means till the maturity of this document we can transfer person to person many a times. Okay, it is a written document. So what is the meaning of negotiable instrument? Negotiable instrument is a transferable written document in a simple लैंग्वेज. ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लिखित दस्तावेज है जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है पर्सन टू पर्सन. सो लेट अस नो अबाउट द सेक्शन ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस द promissory note, bill of exchange and checks as a negotiable instrument under section 13. First of all, we have to know that in all the acts, the definition of the particular given in the section 2. हमेशा हर सेक्शन में अगर अपन बात करें हर एक्ट में जो डेफिनेशन होगी वो डिफाइन की जाएगी सेक्शन 2 में. बट ओनली इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द डेफिनेशन गिवन इन द सेक्शन 13. हियर इज द promissory note, bill of exchange and check defines as the negotiable instrument. बट मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा I have also written the demand draft. Demand draft is the special case of negotiable instrument act which will discuss in the last. Okay, promissory note. Now you have to memorize 3 sections: section 4, section 5 and section 6. Promissory note came in the section 4. It is defined in the section 5 and the check defines in the section 6. अब याद कैसे रखें? I have the trick by which I memorize the 3 sections. First of all, promissory note. नोट के अंदर 3 लेटर्स हैं, NOTE having the 4 letters. तो सेक्शन 4 चेक्स. तो चेक्स को हमें भूल करके याद रखना होगा ओनली चेक. CHEQUE चेक. Check having the 6 letter, it means it comes under section 6. Now there is only 4 things, or we will discuss about the 3 things: promissory note, bill of exchange and check. तो bill of exchange को हम छोड़ दें, तो promissory note section 4, check section 6. रिमेनिंग क्या बचा अब आपके पास में? तो bill of exchange is left, so it came under section 5 of negotiable instrument act 1881. Here for make confusion in the exam, तो क्या करता है एग्जामिनर हमें ये आंसर्स भी दे देता है: टी बिल्स, करेंसी नोट, मनी ऑर्डर बाय द पोस्ट ऑफिस. आप कहेंगे कि सर करेंसी नोट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रॉमिस लिखा होता है कि नहीं? प्रॉमिस, आई पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे बियरर सम ऑफ रुपीज 100, 500, 1000, 2000 लिखा होता है, बट इट इज नॉट द प्रॉमिसरी नोट. यहाँ पर हमें बात करनी होती है पेई की, यहाँ पर हमें बात करनी होती है प्रॉमिसर की, यहाँ पर हमें बात करनी होती है बियरर की. सो वी विल डिस्कस दीज टर्म्स विद द एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न. देखो यहाँ पर लिखा है राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट है. इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस signed by the maker to pay a certain sum of money to a certain person. Unlikely bill of exchange, there is no need of acceptance of promissory note, as here the payer is himself the maker of the note. So here we can see it is an unconditional undertaking signed by the maker. It means here we need the 2 parties. How many parties? 2 parties, party 1 and party 2. Party 1, which is maker, we can see it promisor, and other one is promisee. Promisor is the person who make the promise. Promisee is the person with the person whom the promisor make the promise. Okay, so we need the
टू पार्टीज। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि इसकी प्रॉमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया तो ऐसा देश है जहां पर प्राण जाए पर वचन न जाए पर बात चलती है, और हम हमारे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जान देने की बात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट की हमें रिक्वायरमेंट हुई ट्रेड में। जब हम किसी को उधार देते हैं, उधार वापस लेने की हमें बात करनी होती है, तो हमारे पास में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सो वी कैन क्लेम और बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वी कैन रिकवर अवर अमाउंट जो वो देने से हमें मना कर रहा है, डिनाई कर दे रहा है। तो टू पार्टीज हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिस। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि प्रॉमिसर की बात करें, यहाँ पर श्री पप्पू हैं, श्री पप्पू सन ऑफ मिस्टर चप्पू प्रॉमिस टू पे श्री अप्पू सन ऑफ गप्पू और ऑर्डर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज 5,000 only with interest of rate of 18% per mention, मतलब होता है per annum from the date of these present for value received। प्लेस जहां पर वो लोग होंगे, डेट हम आज ही की डाल देते हैं। डेट क्या है आज की? तो डेट अपन लिखते हैं 12 सितंबर 2020। सिग्नेचर हु विल साइन हियर, सो हु इज मेकिंग द प्रॉमिस? तो हु इज मेकिंग द प्रॉमिस? तो आई मीन्स पप्पू। तो हियर पप्पू हैव्स टू साइन हियर। तो पप्पू क्या बन गया यहाँ पर? प्रॉमिसर बन गया। एंड द अप्पू इज द प्रॉमिसी। इट मीन्स अप्पू को पैसे देने की बात कर रहा है, पप्पू लौटाने की बात कर रहा है। उधारी है किसके ऊपर? पप्पू के ऊपर। पप्पू इज द बोरोअर हियर नाउ एंड अप्पू इज द लैंडर हियर नाउ। It means Pappu will return the amount 5,000 with the interest of 18% per annum, और जो कि कब से कैलकुलेट किया जाएगा? फ्रॉम द प्रेजेंट डेट। सो इट इज द प्रॉमिसरी नोट। हियर ओनली टू पार्टी आर रिक्वायर्ड। देन व्हाट इज द फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स? अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है पे करने के लिए। सम पेबल जो सर्टेन अमाउंट है वो हमें वहां लिखना होता है। शुड साइन इन मस्ट बी इन रिटर्न। ओके, साइन होना कंपल्शन है यहाँ पर। सर्टेन पर्सन को हम यहाँ दे सकते हैं। देयर इज ओनली टू पार्टीज हियर, ओनली टू पार्टीज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, मेकर और द पेयर, ठीक। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल एंड दस द अमाउंट इज नॉट पेबल टू द बियरर। ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, बट इस कंडीशन को हम यहाँ काट के देखते हैं, और यहाँ पर ये ट्रांसफरेबल भी होता है इन सम केसेस, ठीक है। पैसा लौटाने की लायबिलिटी है। नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट इज डिसऑनर्ड। ओके, किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता यदि पैसा नहीं मिला तो। इट नीड टू बी प्रॉपरली स्टाम्प्ड। प्रॉपरली स्टाम्प्ड का मतलब होता है कि नोटरी के थ्रू हम इसे क्या करवाएंगे? स्टाम्प के थ्रू इसे प्रॉपरली स्टाम्प करवा देंगे। अब आप लोगों को बता देता हूं, यू हैव ऑल सीन द एफिडेविट और शपथ पत्र ऑफ मेड ऑन स्टाम्प पेपर्स। हैव यू सीन? यस, हैव यू सीन एवर? कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो ये शपथ पत्र जो होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रॉमिसरी नोट। अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 डिफाइंस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 1881 डिफाइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, लेकिन साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन to pay a certain sum of money only to or to order the certain people or to the bearer of the instrument। तीन पार्टी। देखो, प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी थी, एक था मेकर और एक था बियरर, जिसने उधार लिया प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज में, किसमें बात करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो देयर आर थ्री पार्टीज। वन पार्टी हु विल पेयर, एक पार्टी होगी रिसीवर, और थर्ड होगी जो ऑर्डर करेगी, जो ऑर्डर होगा। इट मींस हियर वी नीड द थ्री पार्टीज। वन हु इज पेयर, जो साइन करेगा, पेई, ठीक है, एंड ऑर्डर। तो देयर विल बी द थ्री पार्टी we need to make the bill of exchange। पार्टीज यहां पर आपको समझ आ गई, तीन हो जाएगी। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तब भी तीन पार्टीज यहां पर होती है। देखो,
Sanjeev, 5 months after the date, Sanjeev or order the sum of rupees 30,000 only for the value received. गोविंदा का एड्रेस होगा यहाँ पर, एक्सेप्टेड गोविंदा, स्टाम्प पेपर होंगे, तो यहाँ पर स्टाम्प के बाद में साइन कर देगा राशिद। 3 पार्टी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हियर वी कैन सी द 3 पार्टीज, संजीव, गोविंदा एंड राशिद। ओके, तो ये होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर ये भी कैसा होगा, राइटिंग में होगा। पेमेंट जब होगी, जब पेमेंट हो जाएगी तो इस पेमेंट की बात कर लेंगे यहाँ पर हम। ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, ऑर्डर पे किसी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी। एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डेफिनेट होगा। फिक्स्ड डेट अमाउंट पेड होगी। साइन बाय बोथ द ड्रॉर एंड ड्रॉई, ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के साइन उस पर होंगे। ड्रॉर मतलब जिसने इसको बनाया, जो पे करेगा और जो पैसा लेगा। और ये अमाउंट हमें टाइम टू टाइम उस टाइम पर लेना होगा, इसकी मैच्योरिटी खत्म होने के पहले। अब व्हाट आर इट्स टाइप, यहाँ पर 3 टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बता देता हूँ। डिमांड बिल होता है जो कि मांगे जाने पर दिया जाएगा। उशेंस होता है जो कि गिवन टाइम पर अपन को देना होगा, इसकी इशुएंस होगी। इनलैंड बिल होगा जो कि फॉरेन में काम नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करें, फॉरेन बिल होगा जो कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए काम आ जाएगा, फॉरेन हमारे ट्रेड के लिए काम आएगा। ट्रेड बिल होगा जो कि सिर्फ ट्रेड रिलेटेड काम आएगा। सप्लाई बिल होगा यदि हमने किसी को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई किया उसके लिए, जैसे कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज? देयर इज मैनी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, यहाँ पर 2 पार्टीज होंगी, यहाँ पर 3 पार्टीज होंगी, ठीक है। 2 पार्टीज, 3 पार्टीज। डेटर द इज द मेकर, द क्रेडिटर इज द ड्रॉअर। तो यहाँ पर डेटर इज द मेकर और द ड्रॉअर, खुद ही यहाँ पर डेटर जो होता है वो मेकर और ड्रॉअर हो सकता है, जबकि यहाँ पर क्रेडिटर जो होगा वो ड्रॉअर होगा। ड्रॉअर कैन नॉट द पे, ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। यहाँ पे ड्रॉअर और पे जो होंगे वो दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होंगे। एक्सेप्टेंस की बात करें, क्योंकि पेयर ओनली द मेकर है तो यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, बट हियर रिक्वायर्स द एक्सेप्टेंस। नोटिस की बात करें, इसके बाद हम कॉपीज की बात करें, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन द कॉपीज, जबकि इट कैन बी ड्रॉन इन द कॉपीज। तो ये बात हुई हमारी किसकी, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस की। नाउ वी केम टू चेक। चेक इज डिफाइंड इन द सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, यहां पर क्या होगा, ये स्पेसिफाइड बैंकर, इसकी डेफिनेशन में एक बार रीड कर देता हूं। इट डिफाइंस एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड दैट इट शुड नॉट बी पेड अनलेस अ डिमांड इज मेड फॉर इट पेमेंट। यहां पर जब तक कि पेमेंट की डिमांड नहीं होगी, इसे कैश नहीं किया जा सकता। इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, सो द चेक इज कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रंकेटेड चेक। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चेक? चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? तो 3 मंथ्स और 90 डेज फ्रॉम द, कब से, फ्रॉम द डेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। 3 पार्टीज यहां पर होंगी, क्योंकि इसे क्या बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर, ड्रॉई और पेई था, उसको मैं बता देता हूं। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। तो यहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर आपको चेक पर नाम दिख रहा है, मैं बनाता हूं पे मिस्टर पप्पू, रुपीज 5,000 only, signed by the Appu. Okay, now here are the 3 parties. Party 1 is the drawer, party 1 is the drawer, party 2 is the Troy, और party 3 is the, sorry, party 2 is the P and party 3 is the Troy. Appu is the drawer, Troy means bank and Pay means जिसका हमने यहाँ नाम लिखा है, to whom the amount will be paid. Okay, तो ये pay हो गया। Appu is the pay, Appu is the drawer
and DROI is the bank. So here are the three parties. अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की अपन बात कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर लिखा होता है वैलिड अप टू 3 months ओनली. ओके, तो जो भी डेट यहाँ पर हम डालेंगे, स्पेसिफाइड डेट जो यहाँ पर होगी, इससे डेट को काउंट किया जाएगा टिल द 3 months और 90 days. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ चेक. नंबर 1, ओपन और बियरर चेक, क्रॉस्ड और अकाउंट पे चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक, कैंसल्ड चेक और स्टेल चेक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन चेक. सेम I will take the same example of Pappu and Appu. Pappu and Appu. Okay. So here is the payee. Who is the payee? Payee is the Appu. Drawer is the Appu. मैं याद करवा देता हूं आपको ड्रॉअर, पेई और ड्रॉअर में ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई में कैसे याद रखना है. पेई आपको याद रखना है, जब चेक होता है तो यहां पर अपन लिखते हैं पे. हमेशा चेक में जो पे होता है तो जिसके नाम पर ये पे किया जा रहा है दैट इज पेई. तो यहां जिसका भी नाम लिखा जाएगा दैट इज पेई. ड्रॉअर, ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब होता है ड्रॉ करने वाला. वन हु ड्रॉ, तो व्हाट ड्रॉ? वन हु ड्रॉ द साइन, वन हु ड्रॉ द सिग्नेचर. तो मैंने इसको ऐसे याद रखा ड्रॉअर. एंड अब कौन बचा? ड्रॉई. 3 पार्टी है, चेक मैंने बनाया, आपको दिया, पैसा लेने आप बैंक जाओगे तो बैंक विल बी द थर्ड पार्टी हु इज ड्रॉई. ओके, ओपन चेक में क्या फैसिलिटी होती है? ओपन चेक और बियरर चेक में जो फैसिलिटी होती है वो ये होती है कि इट इज द चेक. हु इज द पेई? पेई इज द पप्पू. अगर हम चाहें, इफ यू वांट कि ये चेक को कैश कराने गप्पू चला जाए, गप्पू कैन ऑल्सो गो टू बैंक एंड get the cash from the cash counter. But here Pappu has to sign on back side of the check, that is called endorsement. It means after the endorsement check can be, the amount of the check can be get by the any person. कोई भी इसको ले सकता है यदि इस पर्सन ने, पेई ने इसके पीछे साइन कर दिया है तो. ओके, ओपन चेक इट इज द मोस्ट रिस्की चेक. क्यों है भैया रिस्की? व्हाई इट इज सो रिस्की? रिस्की इसलिए कि यदि ये चेक रास्ते में कहीं गिर जाता है और पीछे इसके साइन और कोई उठा के बैंक में ले जाता है कैश कराने, तो बैंक वाले उससे नहीं पूछेंगे कि आप पप्पू हो कि नहीं. नो, वो उसका कैश अमाउंट दे देंगे. बट इंटरनली बैंकों ने इसको लेकर के एक पॉलिसी बना रखी है कि एक बार अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है, इफ द अमाउंट इज मोर देन 50,000, दे रिक्वायर द डॉक्यूमेंट ऑफ द पर्सन हु इज एट द कैश काउंटर फॉर द कैश. ओके, तो ये रिस्की हो गया. इस रिस्क को रोकने के लिए बनाया जाता है क्रॉस चेक. तो व्हाट इज द क्रॉस चेक? क्रॉस चेक में कैसे, मान लीजिए ये अपना चेक है तो इसको क्रॉस कर दें. ऐसे क्रॉस कर दें क्या हम? कैन बी क्रॉस लाइक दैट? नो सर, ऐसे नहीं होगा. ओके, सो वी कैन क्रॉस लाइक दैट. ये भी तो क्रॉसिंग होती है. कैन इट बी क्रॉस लाइक दैट? नो सर, इट कैन नॉट क्रॉस लाइक दैट. ओके, सो क्रॉसिंग मीन्स we will cross here like 2 parallel lines. यहां पर 2 parallel lines हम खींच देते हैं, ये हो जाती है चेक की क्रॉसिंग. Now this crossed check became the account pay check. It means the payment of the check will get only in payee's बैंक अकाउंट. पेई के बैंक अकाउंट में इसको क्या होगा, ये अमाउंट दिया जाएगा. इट मीन्स इट कैन नॉट बी पेड कैश, है ना, कैश नहीं मिलेगा. याद रखिएगा इसमें कैश नहीं होता है, ओनली पेई के अकाउंट में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, जनरल एंड स्पेशल. जनरल क्रॉसिंग इज लाइक दैट, हम कोई भी पेन से अपने चेक पर क्रॉस कर दें. स्पेशल क्रॉसिंग इज इंस्टीट्यूट्स
इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज ऑलरेडी उनके चेक में ऐसा बना होता है अकाउंट पेई ओनली, ये टर्म लिखा होता है और ये लिखा वाला टर्म चेक पर यहाँ पर इसका स्टाम्प लगा होता है। इट मीन्स इट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसका जो पैसा होगा द अमाउंट विल बी पेड टू ओनली पेईज बैंक अकाउंट, ओनली पेईज बैंक अकाउंट। इसका पैसा बैंक खाते में जाएगा सिर्फ पेई से, किसी और को नहीं दिया जा सकता। जबकि हम ओपन चेक का अमाउंट किसी को भी दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज द थर्ड टाइप? पोस्ट डेटेड। पोस्ट मीन्स बाद में और लेटर, ओके। इट मीन्स टुडे द डेट इज 12th of September 2020. Now I will make the check of 12th of October 2020। आज की डेट में 12 सितंबर को मैंने एक चेक ड्रॉ किया है जिस पर डेट डाली है 12 of October की। इट इज द पोस्ट डेटेड चेक। Why I am making this? If it is useless till the 12th of October, then why I am making this type of check? Am I fool? No, I am not the fool. Actually मैं इसलिए चेक बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति से पैसा लिया है या जिस कंपनी से मुझे ऑर्डर लेना है अपने प्रोडक्ट्स का, उसको मैंने ये बोला है कि मैं 12 अक्टूबर को उसे पे करूंगा। तो अब उसे श्योरिटी कैसे हो, भरोसा कैसे हो? तो मैंने क्या किया, उसको उठा करके ये चेक दे दिया कि 12 अक्टूबर को आप क्या कर लेना, इससे पैसा निकाल लेना है। पे का नाम लिख दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा एंड देन I will sign here because I am the drawer of the check. Okay. I hope you are getting, समझ सभी को आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो ये हुआ हमारा पोस्ट डेटेड चेक। नाउ व्हाट इज ब्लैंक चेक? ब्लैंक चेक मीन्स हियर वी विल राइट द नेम ऑफ पे एंड ड्रॉअर विल साइन द check, like Appu signed the check, he is the drawer, he is the pay, but the amount, the place of the amount will be the blank. पुरानी मूवीज देखी होंगी, ये लोग ब्लैंक चेक और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। पुरानी जो मूवीज हैं हिंदी सिनेमा में, उसमें इस तरीके की ये चीजें होती थी, ब्लैंक चेक दे दिया जाता था। अब नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर ये ब्लैंक चेक का मतलब है विदाउट एनी अमाउंट, बिना अमाउंट के चेक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैंक चेक बोलेंगे। ओके, चलिए ये हुआ ब्लैंक चेक। नाउ वी विल discuss about the cancelled check. What is the cancelled check and what is the requirement of the check? You will cross like that the check and here you will write the cancelled. Sometimes the persons write 3 times cancelled, cancelled, cancelled. If you write 1 time, it is considered as the cancelled. You no need to write 3 times for the cancel, cancel, cancel. Okay. So what is the requirement of this cancelled check? If I am giving you the check, cancelled check of my bank account, so you will get the authority to take bank account details of my account. मतलब मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बैंक जाने का और मुझे कोई लोन चाहिए, तो लोन वाले पर्सन को मैंने कहा भैया तुम एक काम करो, ये कैंसल्ड चेक ले जाओ और मेरे बैंक में जाकर के मेरे अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकाल लेना और आपको मेरे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाएगी, बट द चेक विल बी डिपॉजिट इन द बैंक। तो एक ही बार आप इसका यूज कर पाएंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग द types of check. Now we will discuss about the style check. What is the style check? Style check is also known as, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाकी नाम आपको बताता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने चेक बनाया 10th of September 2020 का और इसे 11 सितंबर को मैं बैंक में लेकर के गया। 11 सितंबर को बैंक में लेके गया, कैश हो जाएगा? हाँ सर इजीली हो जाएगा। ओके, मान लीजिए मैं इसे 11 दिसंबर को लेके जाऊं तो इसका जो कंप्लीशन हो चुका है, टाइम 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, द चेक हैज बीन ड्रॉन, मतलब जो टेन्योर था, जो वैलिडिटी थी चेक की, वो हो गई इसकी कंप्लीट। इट मींस नाउ द चेक बिकम एक्सपायर्ड, इन वैलिड और आउट ऑफ डेट। ठीक है, आउट ऑफ डेट या फिर आउट ऑफ वैलिड, ये इसके अलग अलग नाम है। आप चेक लेके बैंक में जाओगे और बैंक में देखोगे कि भाई ये तो 3 महीने हो गए, कैशियर आपको चेक लौटा देगा, बोलेगा सर इट बिकेम स्टेल, आप बोलोगे क्या स्टेल फिस्टेल? नो,
देन ही विल एक्सप्लेन यू दैट सर और मैम सुनिए, ये जो चेक है इसकी जो वैलिडिटी होती है 3 महीने की एंड हो गई, अब आपको एक नया चेक इशू करके लाना होगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद हम CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आगे हम ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।